Hello, my dear Python programmers. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session. इस सेशन में एक प्रिस्क्राइब असाइनमेंट के साथ चलेंगे एंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू इलिस्ट्रेट द यूज ऑफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेथड. स्पेशल नाम है. सो दिस पर्टिकुलर मेथड इज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन एंड उसी के साथ असाइनमेंट नंबर जो 5 है प्रिस्क्राइब्ड असाइनमेंट सेट में वो भी हम लोग देखने वाले हैं. सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू इलिस्ट्रेट द यूज ऑफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर डिलीट अंडरस्कोर अंडरस्कोर. ये उसका नाम है. डिलीट मेथड इनसाइड व्हाट क्लास. नाउ व्हेन वी go with real life objects as well as Python के अंदर के objects, we know that every object is getting constructed and at some point of time it is being destroyed also. So वहां पे object को construct करने के लिए Python में एक method call होता है and that particular method is known as what? Init method. So हम लोग इसको constructor भी कहेंगे. एज वेल एज जब भी कोई ऑब्जेक्ट डिलीट होगा या आउट ऑफ स्कोप होगा तो उस समय ये डिलीट मेथड कॉल होगा एंड दिस पर्टिकुलर डिलीट मेथड इज नोन एज डिस्ट्रक्टर. राइट. So we need to learn like how it has been getting constructed as well as destroyed. Can we go on writing more than one init method? Can we go on writing more than one delete method? वो सारा चेक करेंगे पाइथन में जाके. बट आई फील लाइक आपने पिछला वीडियो अगर जरूर देखा होगा तो that is going to help you a lot for understanding this init as well as del functions that we are going to discuss in this. जहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास को कैसे डिक्लेयर करेंगे, क्लास के ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाएंगे एंड उसके अंदर what the role init is going to play. Definitely all those issues we are going to work on again in this assignment. So let's move into the PyCharm and make the construction and destruction more enjoyable as well as more concrete and crystal clear. So we are back into the PyCharm and यहाँ पे we'll be creating a new Python file. Let's give the name as demo58. So यहाँ पे we'll be mentioning this as object construction and destruction. Right. So let's go on writing one class. Class लिखने का format is class के बाद class name and उसके बाद colon, right? So here I'll go with class person. So person is my class followed by colon and यहाँ पे just to make interpreter happy I'm just mentioning the word as what? Pass. इसके अंदर definition क्या क्या लिखना है class के अंदर वो बाद में सोचते हैं. So this is the syntax of writing the class and अगर इस person class के आपको objects बनाने हैं तो what is the syntax? Object name is equal to class name followed by parenthesis. So object name let us say P1 and यहाँ पे class name is person and उसके बाद I'll go on putting the parenthesis pair, right? इस parenthesis pair में हम लोग parameters पास कर सकते हैं. वो क्या चीज है वो बाद में देखेंगे. पर अभी के लिए this is one object is getting constructed. So I'm just checking it out. Print one object of person type created. Right. Okay. So let's run this. And it says that one object of person type is created. इसका मतलब P1 is equal to person. ये properly work हो चुका है. And यहाँ पे P1 is an object of type person. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि हर जब ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट होगा तो वहां पे कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी होगी. एंड दिस हैज बीन ट्रू फॉर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो. तो पाइथन के ऑब्जेक्ट्स में भी जब भी ऑब्जेक्ट्स कंस्ट्रक्ट हो गए तो वहां पे फंक्शन जैसा एक एंटिटी एग्जीक्यूट होता है एंड दैट एंटिटी इज नोन एज कंस्ट्रक्टर. नेम ही ऐसे दिया है कि कंस्ट्रक्टर यूज्ड इन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन एंड पाइथन में वहां पे एक स्पेशल फंक्शन इज गेटिंग यूज्ड एंड उसका नाम है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर. प्री डिफाइंड फंक्शन है. चेक करते हैं उसको यूज कैसे करना है. Now let's look into the matter of how the objects are getting constructed. Let's write the constructor inside the class. So what I'll do is
ये लाइन को मैं यहां से हटा रहा हूं एंड नाउ इट्स अ टाइम टू राइट द कोड इनसाइड द क्लास. सो लेट्स रिमूव दिस पास आल्सो. And यहाँ पे what I'm going to do is I'll be writing a constructor, and as constructor is written as a function inside a class. हम लोग उसको method भी कह सकते हैं, and the name of this method is underscore underscore init underscore underscore. तो ध्यान से देखना है कैसे यूज करेंगे. So I am defining it. So the name of the method is init. यहाँ पे सजेशन के रूप में आ चुका है. प्लीज ऑब्जर्व init, एंड इसको एक पैरामीटर है सेल्फ, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे. बट यहाँ पे जस्ट प्लीज गो विद दिस, इट्स अ प्री डिफाइंड मेथड, राइट. सो यहाँ पे विल गो ऑन राइटिंग समथिंग इनसाइड दिस. सो पहले इसके अंदर लिखते हैं प्रिंट आई एम इन नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर. आई एम इन नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, राइट. सो आप कहोगे सर उस इनिट को एक आर्ग्यूमेंट पहले से ही मिला है. सो दिस आर्ग्यूमेंट, जब भी आप क्लास के अंदर कोई भी मेथड लिखोगे एंड दैट पर्टिकुलर मेथड गोज अलोंग विथ ऑब्जेक्ट. अभी ये जो सारी चीजें हैं मैंने इसको डिस्कस किया है पिछले सेशन में भी, अगले सेशन में उसके बहुत डिटेलिंग्स में चलेंगे. पर यहाँ पे प्लीज लिसन दिस स्टेटमेंट वेरी केयरफुली. क्लास के अंदर जो भी मेथड लिखेंगे एंड इफ दैट मेथड गोज अलोंग विद द ऑब्जेक्ट, उसके अंदर पहला पैरामीटर हमेशा होगा, and that parameter is known as what? Self. And it is always referring to current object. Current object. अभी इन रियल वर्ल्ड ऑल्सो अपने आप को रेफर करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं? माई सेल्फ. सो द करंट ऑब्जेक्ट इज रेफर्ड ऑलवेज विद द हेल्प ऑफ व्हाट? सेल्फ. इसके बहुत सारे यूज है. जब हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ जाने वाले वेरिएबल्स को डिक्लेयर डिफाइन करेंगे तो उसमें भी सेल्फ का यूज करेंगे. पर अभी के लिए वी विल बी जस्ट putting ourselves into the constraint zone that this self will be using for referencing what? Current object. That's it, right? Okay. Now in this case, when I look towards this, अभी ये P1 object construct हो रहा है. So this P1 object is constructed on the basis of this class. तो इस क्लास के अंदर का init function जरूर कॉल होना चाहिए. Let's go on checking कि init function कॉल हो रहा है या नहीं. So when I run this, and it says that I am in no argument constructor. So let's say like, can we go on passing another arguments to this constructor, and उस केस में उस constructor को हम लोग कहेंगे parameterized constructor. So self के बाद I'm just saying person ID करके एक वेरिएबल यहाँ पे लेते हैं एंड यहाँ पे पर्सन आईडी के रूप में पास कर देंगे लेट अस से 2. एंड नाउ आई कैन से दैट आई मीन वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, राइट. सो पर्सन आईडी करके एक आर्ग्यूमेंट मैंने इसको पास किया है. सो यहाँ पे लेट्स रन दिस एंड चेक इट आउट. आई मीन वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर. अभी कैन वी गो ऑन पासिंग द अनदर आर्ग्यूमेंट आल्सो. यहाँ पे और एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं पर्सन नेम, एंड यहाँ पे 2 कॉमा डबल कोट्स में मैं कह रहा हूं श्री राम, राइट. एंड लेट्स गो ऑन चेकिंग. अभी एक स्लाइड चेंज करेंगे. आई मीन 2 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर. तो चेक करते हैं ये कॉल हो रहा है या नहीं. सो इट सेज दैट आई मीन 2 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर. 100% कंफर्मेशन हुआ कि जब भी पाइथन में कोई भी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट होता है तो कॉल इज गिवन टू इनिट फंक्शन. So init function is playing the very genuine role in object construction. So we call it as constructor. If we do not write init function inside the class, then by default interpreter gives us the init function and उसको हम लोग कहते हैं default constructor. Now can we pass the parameters with the init function? Yes, we can pass the parameters to the init function and उस केस में उसको कहेंगे what? Parameterized constructor. ओके. सो और एक चीज हम लोग यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं. कैन वी राइट कंस्ट्रक्टर मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इनसाइड अ क्लास. सो लेट्स गो ऑन राइटिंग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर एंड उसके साथ चेक करते हैं. बहुत ध्यान से देखना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एज फार एज योर टेस्ट एज वेल एज इंटरव्यूज आर कंसर्न. एंड यहाँ पे प्लीज ऑब्जर्व. तो मैंने ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन वहां से रिमूव कर दिया है एंड इसके पहले व्हाट आई विल राइट इज डिफाइन करते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर व्हाट इनिट फंक्शन. And यहाँ पे I'll go with saying something as just print and I am in what? No argument constructor, right? Okay. और एक define करते हैं. Define, I'll go with define
अंडरस्कोर अंडरस्कोर init अंडरस्कोर अंडरस्कोर एंड यहाँ पे सेल्फ, एंड इसके साथ और एक पैरामीटर मैं पास कर रहा हूं, लेट अस से person ID, and I'll be writing this as print. I am in what? One argument constructor नहीं गया, one argument constructor, right? Okay. So अपने पास अभी तीन कंस्ट्रक्टर है, right? init function 3 बार लिख चुके हैं, with no argument, with one argument, with one and two arguments, right? So let's see, like, can Python interpreter pass this particular code? तो उसको चेक करने के लिए मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूं print code is working. अगर code is working अगर print हो रहा है, that means Python interpreter does not have any objection on having multiple init functions inside the class. So let's go on executing this, and it says that code is working. अभी ध्यान से देखना है, when we go on writing the init function for multiple times in this, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे कंस्ट्रक्टर एक क्लास के अंदर लिखने का परमिशन है, दैट इज C++ एज वेल एज जावा, एंड कॉन्सेप्ट को कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. कॉन्सेप्ट को कहेंगे व्हाट? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. ओवरलोडिंग, दैट मीन्स मोर देन वन कंस्ट्रक्टर टू बी रिटन इनसाइड व्हाट? वन क्लास. So यहाँ पे Python interpreter does not give me any kind of error when I'm using what? Multiple init function, init method inside one class, multiple construction inside one class. So ये कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. बट अभी और एक चेक करना है, इतने सारे कंस्ट्रक्टर है अपने पास, बट कैन वी गो ऑन कंस्ट्रक्टिंग ऑब्जेक्ट्स? अगर ऑब्जेक्ट्स भी कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं एंड इतने सारे कंस्ट्रक्टर के साथ हो रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं कि पाइथन में कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग सिमिलर टू C++ एंड जावा चल सकता है. तो चेक करते हैं एग्जीक्यूट करके, एंड तब जाके कंक्लूजन में एक स्टेटमेंट कहेंगे. सो लेट्स गो ऑन वर्किंग अक्रॉस दिस. सो let's go on checking, can we go on constructing the object? So P1 is equal to, I'm constructing object person and with no arguments, right? So let's see, like, ये अभी कैसे रिएक्ट होता है. So no argument का कंस्ट्रक्टर अपने पास है. So जब पहले बार इसको रन किया था तो इसने हम लोगों को दिया था स्टेटमेंट एज आई मीन नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर. पर अभी उस नो आर्ग्यूमेंट के साथ अपने पास वन आर्ग्यूमेंट भी है, टू आर्ग्यूमेंट भी है. सो कैन इंटरप्रेटर गोज ऑन कॉलिंग दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर, वो चेक करते हैं. चलो, सो वेरी इंटरेस्टिंग विजडम लेवल अभी आने वाला है. एंड इट सेज टू दैट द प्लीज ऑब्जर्व इट सेज दैट पर्सन का इनिट मैं कॉल कर रहा हूं, मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स. इसमें मिसिंग है दो आर्ग्यूमेंट्स, राइट? इसका मतलब क्या है कि यहां पे द पाइथन इंटरप्रेटर इज गोइंग टू कंसिडर ओनली द लास्ट कंस्ट्रक्टर दैट वी हैव रिटर्न. बिकॉज हाउ इंटरप्रेटर वर्क्स, इंटरप्रेटर गोज इनटू द कोड लाइन बाय लाइन. तो उसने अपना कोड को देखना शुरू किया यहां से, हर लाइन पे. यहां पे आया तो वो हैप्पी था कि मेरे पास अभी नो आर्ग्यूमेंट का कंस्ट्रक्टर है. जैसे ही यहां पे गया तो उसने देख लिया कि अभी मेरे पास वन आर्ग्यूमेंट का है, तो उसने वो पीछे वाला नो आर्ग्यूमेंट का कंस्ट्रक्टर वो भूल चुका है. फिर जब आगे आया तो यहां पे उसने देखा कि मेरे पास अभी और एक कंस्ट्रक्टर है जो कि दो आर्ग्यूमेंट का है. सो लास्ट में उसने कौन सा कंस्ट्रक्टर देखा है व्हाइल गोइंग इन दिस डायरेक्शन? इज टू आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर. एंड इस टू आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर में इंटरप्रेटर ने सिर्फ देखा कि अपने कोड में बस यही है, तो वो पहले वाले कंस्ट्रक्टर को वो भूल चुका है. एंड तब जाके ये जब हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं तो इट गिव्स यू द एरर दैट टू आर्ग्यूमेंट्स आर मिसिंग, राइट? तो यहां पे इट ओनली अंडरस्टैंड कि यहां पे एक ही कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट है विच इज रिटर्न एज लास्ट इनटू द क्लास, राइट? तो चेक करते हैं, कैन वी गो ऑन वर्किंग विद टू आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्शन. सो यहां पे वन आर्ग्यूमेंट भी पास करेंगे तो भी एरर आना चाहिए. सो लेट्स गो ऑन पासिंग द वन आर्ग्यूमेंट एंड गो ऑन चेकिंग द कोड. सो यहाँ पे मैंने पास कर दिया 12. एक बार फिर से कोड को रन करते हैं एंड यू विल फाइंड दैट एरर कम्स एज, अभी दो आर्ग्यूमेंट उसको चाहिए एंड इट सेज दैट हाँ मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट टू व्हाट? एज व्हाट? पर्सन नेम. सो इसका मतलब क्या है? सो इसका मतलब यह है कि इंटरप्रेटर इज गोइंग टू एज्यूम ओनली लास्ट रिटर्न कंस्ट्रक्टर, राइट? सो चेक करते हैं यहाँ पे 12 करके कॉमा करके लेट्स राइट इट एज गोविंद. एंड नाउ
लेट्स गो ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस। अभी चेक करते हैं, परफेक्टली एग्जीक्यूट होगा। आई एम इनटू आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर एंड द कोड इज वर्किंग। सो कैन वी राइट मल्टीपल कंस्ट्रक्टर इन पाइथन क्लास? आंसर इज यस, बट द कंस्ट्रक्टर विच इज रिटर्न लास्ट, सबसे एंड में जो कंस्ट्रक्टर आपने लिखा है वही कंस्ट्रक्टर इंटरप्रिटर ध्यान में रखेगा। दैट्स इट। पहले वाले कंस्ट्रक्टर के साथ काम नहीं होने वाला। ये मैंने प्रूफ के साथ यहां पे आपको दिखा दिया, राइट? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्टर। फिर अगर आपको ऐसा फील लेना है कि मुझे नो आर्ग्यूमेंट से भी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करना है, 1 से भी करना है, 2 से भी करना है, सो अपने पास उस केस में एक सॉल्यूशन है, एंड दैट सॉल्यूशन इज कंस्ट्रक्टर विद पैरामीटर्स विथ डिफॉल्ट वैल्यूज। सो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखेंगे अलोंग विद डिफॉल्ट वैल्यूज। तो वो कैसे लिखना है प्लीज ऑब्जर्व। एंड यहाँ पे आई एम जस्ट रिमूविंग दिस 2 थिंग्स, एंड यहाँ पे व्हाट आई विल डू इज इस पर्सन आईडी को इनिशियलाइज करते हैं 0 से, एंड पर्सन नेम को इनिशियलाइज करते हैं नन से। सो इफ आई एम नॉट पासिंग एनीथिंग, आई विल बी एबल टू find these values as what? By default values. So यहाँ पे let's go on working with this, and it says that person no argument से काम किया। यहाँ पे P1 is equal to person 12 1 argument से काम किया, and यहाँ पे P1 यहाँ पे वेरी ऑब्जेक्ट के नाम को चेंज करते हैं। सो P3 is equal to what? I'll go with person, and यहाँ पे I'll go with 13 कॉमा, and यहाँ पे चलेंगे गोपाल, राइट? एंड लेट्स गो ऑन चेकिंग तीनों केस में क्या हो रहा है, एंड इट सेज दैट फॉर नो आर्ग्यूमेंट्स आल्सो इट्स मूव्स इनटू दिस, फॉर 1 आर्ग्यूमेंट आल्सो इट मूव्स इनटू दिस, फॉर 2 आर्ग्यूमेंट आल्सो इट मूव्स इनटू दिस, राइट? तो यहां पे आप फील ले सकते हो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का, बट एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर जब भी आप क्लास में लिखते हो, so Python interpreter is going to consider only which constructor? The one which is written as last constructor inside the class, right? That is very sure. तो this is all about the init, and अभी चेक करते हैं जब कोई भी ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्शन होगा, एंड डेफिनेटली डू यू एग्री दैट हर ऑब्जेक्ट को एक ना एक दिन डिस्ट्रॉय तो होना ही है। सो जब भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा तो उस समय भी कुछ फंक्शनैलिटी होगा, एंड वो फंक्शनैलिटी कहलाएगा डिस्ट्रक्टर। सो पाइथन में डिस्ट्रक्टर लिखे जाते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर डेल फंक्शन से। सो वो कैसे लिखने हैं प्लीज ऑब्जर्व। सो इनसाइड द क्लास आई विल गो ऑन राइटिंग, यहाँ पे एक फंक्शन लिखते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर डेल फंक्शन। यहाँ पे ध्यान से देखना है, डेल फंक्शन इट आल्सो टेक्स व्हाट? सेल्फ। जो जो फंक्शन क्लास के अंदर लिखे जाएंगे वो कहलाएंगे मेथड। अगर वो इंस्टेंस के साथ ऑब्जेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं तो उनके पास पहला आर्ग्यूमेंट हमेशा रहेगा सेल्फ, राइट? सो एंड दिस इज व्हाट? प्रीडिफाइंड। सो यहां पे उसको यूज करते हैं, इसके अंदर जस्ट एक प्रिंट लिखते हैं, सो सैड आई एम बीइंग डिस्ट्रॉयड, राइट? ओके, एंड अभी जितने भी ऑब्जेक्ट हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किए P1 P2 P3 उनको डिलीट करते हैं 1 by 1, राइट? सो आई विल गो ऑन डिलीटिंग P1 एंड देन डिलीटिंग P2 एंड डिलीटिंग P3। सो हर ऑब्जेक्ट जब डिलीट होगा तो कंट्रोल शुड गो इनटू द डिस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट, राइट? सो चेक करते हैं हाउ दिस वर्क्स, एंड इट सेज दैट सो यहाँ पे आई मीन 2 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर 2 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर 2 आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, एक कंस्ट्रक्टर से तीनों ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हुए, एंड फिर जैसे मैंने उनको डिलीट 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 किया तो हर बार हर ऑब्जेक्ट डिलीट होते समय उसने कॉल किया डिस्ट्रक्टर को, एंड प्लीज सी सो सैड आई एम बीइंग डिस्ट्रॉयड, सो सैड आई एम बीइंग डिस्ट्रॉयड, सो सैड आई एम बीइंग डिस्ट्रॉयड। सो हर ऑब्जेक्ट जब कंस्ट्रक्ट होगा तो कॉल होगा कंस्ट्रक्टर के लिए, हर ऑब्जेक्ट जब डिस्ट्रॉय होगा तो कॉल होगा डिस्ट्रक्टर के लिए। इफ यू डू नॉट राइट कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर्स इन अ क्लास, interpreter provides by default constructor and destructor in a class which are known as default constructor and default destructor, and the method name for constructor is underscore underscore init underscore underscore, method name for destructor is underscore underscore delete underscore underscore, and हमेशा वो दोनों के दोनों methods are going to take the argument as self by default, and if you want to pass parameters you can go on passing it. Now let me show you कि
वो सेल्फ ही पैरामीटर लिखना जरूरी है क्या, उसके अलावा कुछ और लिख सकते हैं क्या? Definitely, as it's a variable name, we can go on putting anything else also. For example, let me go with myself. मैंने यहाँ पे सेल्फ की जगह पे माई सेल्फ लिख दिया, यहाँ पे भी माई सेल्फ लिख दिया. एंड नाउ लेट्स गो ऑन एग्जीक्यूटिंग द कोड एंड चेक करते हैं अपना कोड इस सिचुएशन में भी रन होता है या नहीं. सो लेट्स गो ऑन एग्जीक्यूटिंग दिस एंड इट सेज दैट सेम एग्जीक्यूशन. प्लीज ऑब्जर्व. सो नॉट नेसेसरी दैट वो आर्ग्यूमेंट सिर्फ सेल्फ ही होना चाहिए, आप उसका नेम चेंज कर सकते हो, बट मोर ऑथेंटिकली. Why self name is suggested by Python? Because it is always referring to the current object in picture, right? जो आप current object के ऊपर काम कर रहे हो वही object उससे रेफर किया जाएगा. So most appropriate word is self. एंड इसी को अगर आप जब C++ पढ़ोगे, जावा पढ़ोगे, तो C++ एंड जावा ने इसको ही दिस कीवर्ड के साथ यूज किया है. So that's it from my side about construction and destruction. I hope init method as well as delete method, which is working as constructor and destructor in Python class, ये बहुत ही अभी crystal clear हुआ है. That's it from my side. Thanks for the watching. Keep doing programming. Happy learning and thank you very much.